میں چوری آصف علی صاحب کے بیان پہ جتنے بھی ساتھی اس پریس کانفرنس کے لیے تشریف لائے ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا اور ہماری بات سننے کے لیے یہاں تشریف لائے. تو اس موقع پہ اپنا موقع پیش کرنے کے لیے ہم سب دوست اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے بارے میں کچھ ریومرز، کچھ افواہیں کچھ دنوں سے گردش کر رہی تھی، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ مقابلہ کرنا چاہیے. ایسے اچھے گنونے اور مطلب برے جو ہیں وہ طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے مخالفت سے گھبرا کے. تو اس موقع پہ میں سب سے پہلے تو یہاں پہ جو اکٹھے ہوئے ہیں دوست ان کا تعارف کرواتا ہوں. جو ہم سب چوری آصف صاحب کے ساتھ ہیں اور چوری آصف صاحب کے ہم بازو ہیں، اور چوری آصف صاحب این اے 148 سے بھی اور پی پی 108 بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. یہ وقت ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم دونوں سیٹس پہ الیکشن لڑتے ہیں یا ہم ایک سیٹ پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ سب دوستوں کے ساتھ، سب ساتھیوں کے ساتھ یہ ڈسکشن کے بعد مطلب ہوگا. لیکن ہم اپنے حلقے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے، اور جو بھی فلاحی کام ہمارے حلقے میں، خواہ ہم ایم پی اے ہوں یا ایم این اے ہوں نہ بھی ہوں، تب بھی ہمارے حلقے میں جو فلاحی کام ہوں گے ان میں پہلے بھی چوری آصف صاحب بھرپور حصہ لیتے رہے ہیں اور شرکت کرتے رہے اور اپنا حصہ ڈالتے رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ کوشش جاری رہے گی اور لوگوں کی خدمت یہ جاری رہے گی. سب بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام میرے ساتھی بھائیوں، السلام علیکم. میں آپ سب کا یہاں آنے پر مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سیاست ایک مشن ہے جو کسی عبادت سے کم نہیں ہے. عوام کی خدمت کرنا میرا مشن ہے. میری سیاست جو اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور یہ سفر میری زندگی میں جاری رہے. لیکن حسد اور بغض سے ہمارے بعض مخالفین میرے سیاسی میدان سے کنارہ کشی کا پروپوگنڈا کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. وہ انشاءاللہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے انشاءاللہ. میں نے عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کرونا وبا کے دوران جب عوام میں خوف کی فضا تھی اور اس وقت بعض سیاسی اور سماجی رہنما عوام سے ملنا تو دور موبائل فون پر بھی رابطے میں رکھنا گوارا نہیں کر رہے تھے، میں نے اپنے حلقہ پی پی 198 میں کلورین سپرے کروایا. عوام کو کرونا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے، سینیٹائزر کا استعمال، فیس ماسک پہننے کے بارے میں آگاہی دینے کے پمفلٹ تیار کروا کے تقسیم کروائے. اور اس کے علاوہ پی پی 198 میں مختلف فلاحی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. میٹروپولیٹن کارپوریشن ساہیوال کو جراثیم کش سپرے کے لیے 2 ٹینکر، بڑے ٹینکر جو ہیں وہ شہر میں سپرے کے لیے میں نے تیار کروا کے دیے، جس سے انہوں نے بلدیہ کارپوریشن ساہیوال نے پورے شہر میں آپ نے دیکھا ہوگا روڈ پہ سپرے کی. نمازیوں کو کرونا سے بچانے کے لیے تقریباً 300 مساجد میں ہم نے کلورین سپرے پہنچایا، اور چھوٹی سپرے مشینیں بھی ساتھ مہیا کی کہ وہ ہر مسجد میں نماز سے پہلے صفوں پہ اور مسجد میں سپرے کروائی جائے، جس سے نمازی کرونا جیسی موذی مرض میں مبتلا نہ ہو. لاک ڈاؤن کے دوران غریب افراد کے لیے آٹا اور راشن نصیب پانے پر اپنے ہر گاؤں میں ہم نے پہنچایا اور غربا میں تقسیم کروایا. اسی دوران شدید گرمی تھی. ایک دن میں سول ہاسپٹل کرونا وارڈ میں گیا تو وہاں پہ جو کرونا کے پیشنٹ تھے وہ گرمی میں بہت زیادہ مبتلا تھے اور بہت اذیت ناک پوزیشن میں تھے. ان کو ایک تو وہاں پہ انہوں نے قید کیا ہوا تھا، قید والا سسٹم تھا. پرنسپل صاحب نے مجھے ریکویسٹ کی کہ سر یہ ہمارے لیے ایک بہت مسئلہ ہے. تو میں نے اسی وقت 4 ٹن کے اے سی 4 عدد فوری اگلے دن ہی وہاں پہ تنصیب کیا اپنی ذاتی جیب. یہ جولائی کے مہینے میں، جون جولائی کے مہینے میں. اس کے علاوہ اپنے حلقہ میں الیکشن کے بعد، الیکشن لڑنے کے بعد سے اب تک 5 فلٹر پلانٹ میں اپنے پورے پی پی 198 میں 198 میں
जो एक्टिव करवा चुका हूँ और उनका महाना बिल भी अपनी ذاتی पॉकेट से अदा कर। उसमें नुमाया तौर पे नवा नाइनर बहुत बड़ी आबादी है, वहाँ से 135 नौहल नवा नाइनर और मुल्हका आबादियों के तकरीबन 50,000 से ज़्यादा आबादी के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उसके अलावा मेरे अपने गांव 87 नाइनल में, ख्वाजा आरफ 118 नाइनल में, और अब जो मुस्तकबिल में अभी हमने थोड़ा दिन पहले एक जीवन सिटी में भी फिल्टर प्लांट एक्टिव करवाया। इसके अलावा अभी जो 2 फिल्टर प्लांट आइंदा गर्मियों में मैं अपने भाई चौधरी खुर्शीद और यासीन भट्टी साहब की कावशों से इन्होंने जगह मुझे ले दी है कच्ची आबादी कमीर में, वो भी इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में हमारा फिल्टर प्लांट एक्टिव हो जाएगा। 87 नंबर गाँव में आपने देखा होगा जो मेरा गांव है उसमें तकरीबन 1-1.5 साल से वो पानी में गर्क हुआ था। हमने रिसेंटली उसमें उसके डिस्पोजल के लिए और उसके जौहर की सफाई के लिए 3 लाख रुपए की मालियत से बहाली सीवरेज का काम किया है। गुलशन अली और उसके साथ मुल्हका आबादियाँ, कच्ची आबादियाँ, वहाँ पे डिस्पोजल का इंतज़ाम नहीं था। जो गुलशन अली की इंतज़ामिया थी वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई, तो वहाँ के जो रहायशी हैं वो एक अजियतनाक ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उसके लिए हमने 14 लाख रुपए की मालियत से वहाँ पे एक डिस्पोजल का बंदोबस्त किया, जो कि इंशाल्लाह इसी हफ्ते एक्टिव हो रहा है। वो आपको उसकी तस्वीरें इफ्तिताह की चंद दिनों में मिल जाएंगी। आखिरी मुराद में 93 नाइनल मसरू कॉलोनी में भी यही मसला था, और वहाँ पे भी लोग एक अज़ियतनाक ज़िंदगी बसर कर रहे थे गंदे पानी की वजह से। वहाँ पे हमने एक हीटर इंजन मुहैया किया, वहाँ के सीवरेज की बहाली के लिए अपनी ज़ाती जेब से मैंने उनकी माली मामलत की, और वो लोग भी दोबारा इस दुनिया में आ गए हैं। इसी तरह 98 लक्का आला में भी उनके पास हीटर इंजन का इंतज़ाम नहीं था, हमने वो 1.5 लाख मालियत का पूरा सिस्टम उनको नया लेके दिया। शजरकारी मोहन में मैंने तकरीबन 25 से ज़्यादा स्कूलों में पिछले साल हुई थी, तो हमने वहाँ पे तकरीबन 2000 पौधा मैंने अपनी तरफ से डोनेशन किया, स्कूलों के अंदर लगवाए। और जिन स्कूलों में पानी पौधों को देने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं दिया, वहाँ पे अपने सबमर्सिबल पंप भी लगवा कर दिए सर। उसमें नुमाया तौर पे कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल, साहिवाल 99 सिक्सार का स्कूल और 108 नाइनल का स्कूल, वहाँ पे हमने सबमर्सिबल पंप का भी लगवा के दिए। गरीब और नादिर मरीज़ों के लिए मुख्तलिफ इलाकों में हम फ्री मेडिकल कैंप भी लगवा रहे हैं उस वक्त से, इलेक्शन के बाद से। ख़ास तौर पे आँखों और रोड एक्सीडेंट में अगर कोई हादसा हो जाते हैं, मेरे पास अगर कोई भी नादर या गरीब शख्स पहुँचा है, बिला दरेक डॉक्टर मनीर साहब की रेफरेंस से हम उनका इलाज फ्री करवा के देते हैं। उसमें डॉक्टर मनीर साहब हमारे साथ बहुत अच्छी मामलत करते हैं और वो भी ताउन करते हैं। मुस्तकबिल करीब में कच्ची आबादी कमीर में फिल्टर प्लांट पहले मैंने जिक्र किया है। इसके अलावा कभी भी खेलों के फ़रोग के लिए कभी भी किसी भी गांव से किसी भी दोस्त ने, ख्वाह कबड्डी का इवेंट हो, हॉकी का हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, अक्सर आप लोग मुझे देखते रहते हैं कि मैं खेलों के मैदानों में कभी भी कोई दोस्त किसी ने मुझे बुलाया तो कभी इसको ना नहीं करता। उनके साथ ताउन भी करते हैं बच्चों के साथ, और अच्छी एक्टिविटी के लिए उनके साथ पूरा काम करते हैं, और खेलों के फ़रोग के लिए मैं हर वक्त कोशिश करता रहता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो कि बयान करूँ तो बहुत लंबी एक दास्तान बन जाएगी। ये आज का सारा इकट्ठा होना, सारे भाइयों का आप सबको बुलाना, ये मुख्तलिफ औकात में अक्सर औकात ये चलता रहता है। जी आसफ साहब ने उन्होंने इलेक्शन से हारने के बाद अपना सियासत छोड़ दी है। बाद का 1-2 दफ़ा मैं मुल्क से बाहर गया हूँ चंद दिन के लिए, उस वक्त भी ये अखबार उन्हें जारी कर दी
इसी तरह आज दो दिन से एक मेरा भाई, उनके वालिद साहब तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने भी खबरें, गुमराह करने वाली खबरें बाद मुखालफिन के साथ मिलकर लगाई होंगी, जो कि घबरा चुके हैं कि ये बंदा हारने के बावजूद भी इसके दोस्त और ये क्यों मिलकर काम कर रहे हैं। अब जिस तरह फिल्टर प्लांट के लिए जगह की ज़रूरत थी, चौधरी खुर्शीद साहब ने वहाँ पे 3 लाख रुपए की परचेज की, कच्ची बात है, तो वहाँ पे फिल्टर प्लांट हम अपनी फादर से लगवा के दे रहे हैं 10 से 12 लाख का प्रोजेक्ट है। इसी तरह ये जितने भी दोस्त हैं मेरे साथ, ये उसी तरह मेरे साथ खड़े हैं जिस तरह इलेक्शन के दौरान थे, और मेरे साथ हर मौके पे ये हर तरह का ताउन कर रहे हैं, अपनी पॉकेट से भी, अपनी सपोर्ट से भी, और हर तरीके से। ये जो बाद लोग अवाम की खिदमत के जारी मिशन से खौफजदा है, उन्होंने मेरी सियासत से किनारा कशी का प्रोपेगेंडा करके अवाम को गुमराह करने का सिलसिला शुरू किया, जो बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। मेरे मुखालफिन क्या थे और क्या हैं, ये किसी के ढका छुपा नहीं किया था, मुझे इस बारे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मैं अवाम की खिदमत कमीशन को ही सियासत समझता हूँ। जब तक मेरी ज़िंदगी है, अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह मुझे इस मिशन पर गामज़द रहने की हिम्मत दे। और इसके अलावा बावजूद किसी सिलसिले में मैं शहर से बाहर भी हूँ, मेरे साथ मेरे 3 नुमाइंदे, चौधरी तारक साहब, चौधरी मुस्तफ़ा गुजर साहब, हम वक्त वो हल्के में पीछे मौजूद होते हैं। दोस्तों के साथ हम सुबह डेरे पे बैठते हैं दोस्तों के लिए, और शाम को भी डटे में खुशी गमी वो भी हम प्रॉपर तरीके से हर वक्त अवाम के साथ टच है। किसी भी साइल के जुल्म ज्यादती के लिए भी दोस्तों के साथ, हम के साथ थाना कचहरी में भी चलते हैं कि किसी के लिए नेकी का काम कर सकें। तो ये आज आप सब लोगों को असल में बुलाने का मकसद तो वो खबर का बहाना बन गया, लेकिन इलेक्शन के बाद की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये मेन बताना ये था कि हम अपने इलाके से पीछे नहीं हटे, और जो अपनी सेहत अवाम की खिदमत है उसको जारी रखे हुए।